लास्ट में इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे एडवांस ऑडिट एश्योरेंस। पहले क्वेश्चन नंबर वन, हैमर कंपनी। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जनाब हमेशा एक आदत बना लो कि आपने करना क्या। आपने देख आप सीधा सीधा आ जाओ। और पहली रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? इवेल्युएट द बिजनेस रिस्क फेस बाय द ग्रुप। 10 मार्क्स अवेलेबल है। ठीक है। Evaluate and prioritize the risk of material misstatement to be considered in planning the audit of group. Risk of material misstatement। ठीक है, 16 मार्क्स अवेलेबल है। अच्छा जी। यूजिंग एग्जिबिट 4, डिजाइन प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर relating to the store enhancement program। 7 मार्क्स अवेलेबल। और यूजिंग एग्जिबिट 5, डिस्कस एनी एथिकल इश्यूज अराइजिंग एंड रिकमेंड एनी एक्शन विच नीड टू बी टेकन। यहाँ पे आपके पास कितने 7 मार्क्स अवेलेबल है। टोटल मार्क्स ये कितने हो गए? 40 मार्क्स। यानी कि 10 मार्क्स क्या है भाई? वो प्रोफेशनल मार्क्स हैं, वो आपको फ्री में मिल जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन ढंग से करा। इस क्वेश्चन को ढंग से आप किस तरह करोगे, चलो अब वो भी देखते हैं। अब शुरू से जरा सिनेरियो देखते हैं। हमेशा क्वेश्चन नंबर वन, हमेशा इसकी स्टार्टिंग में डेट क्या होगी? 1 जुलाई होगी। और ईयर एंड 30 सितंबर होगा। तो ये देख लो, इट इज 1 जुलाई 2005। You are manager in the audit department of Stanley Associates, a firm of chartered certified accountants responsible for the audit of Hammer Group, the group for the year ended 30th September 2005, the group which is not a listed company, listed company नहीं है, operates a number of hardware software which supply trade customers and the public। ठीक है भाई। Your firm audits all components of the group, including a foreign subsidiary. So your firm audits all components of the group, including a foreign subsidiary during the year. The following exhibits available on the left-hand side of the screen provide information relevant to the question. Partner's email and email which you have received from Paula Sanders, the audit engagement partner. Group structure and activities, outline of the group structure and activities relevant to audit planning। ठीक है। और फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोजेक्टेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपको बताया हुआ है। Business development information relevant to audit planning, additional services details in relation to services which Stanlow Associates has been asked to perform। ठीक है भाई। Respond to the instruction in the email from the audit engagement partner। अच्छा जी, अब email क्या है? To audit manager from Paula Sanders group audit engagement group engagement partner। Subject आ गया आपका हैमर ग्रुप। Audit planning date आ गई 1 July 2005। I met with the group finance director yesterday along with the representative of the group audit committee. We discussed the group activities during the year and it plans to expand into further international markets next year. They also provided me with some extracts from the projected consolidated financial statements and a selection of a key performance indicators. I have also provided you with some background information about the group to assist with planning the audit. Based on the analysis which I have done on the industry, it is appropriate for overall materiality to be based on revenue। ठीक है जी, मटीरियली आपकी रेवेन्यू पे होनी चाहिए। अच्छा, ये इसको हम लोग तब कंसिडर करेंगे जब हम लोग बी रिक्वायरमेंट करेंगे। अभी हमारा फोकस ए रिक्वायरमेंट पे बिजनेस रिस्क पे रहेगा। You will need to determine and apply an appropriate materiality threshold in your briefing notes। ठीक है जी। तो रिक्वायरमेंट्स हम लोग पहले देख चुके हैं। अब बिजनेस रिस्क पे फोकस करते हैं हम लोग। द ग्रुप ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ लार्ज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विद इन द डोमेस्टिक मार्केट। द स्टोर सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल्स इक्विपमेंट। अच्छा जी। तो अच्छा जी। Equipment to public and builders, the Hammer brand, which is internally generated and not recognized in the consolidated statement of financial position, is key to the group success। ये एक हमारा बिजनेस रिस्क हो गया। ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द ग्रुप
subsidiaries. Ranch is financial services company specializing in providing saving account and loans to individual. अच्छा जी. Mallet company is a wholly owned subsidiary and operates the Hammer store. It generates the majority of the group income. Mallet company owns 50 retail stores across the country. Mallet company has been involved in a price war with another national hardware store during the year, offering significant discounts and heavily marketing the Hammer brand in an attempt to increase market share. भाई कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का होना ये भी एक बिजनेस रिस्क है, तो हमें अब तक दो मिल गए. आगे देखते हैं. Ladder Company is an overseas subsidiary situated in Finland. The group obtained a 55% shareholding in October X4 for cash consideration of 82 million. The share purchase was financed partly using a 32 million bank loan with a variety interest which was taken out in October X4, partly through the group existing cash reserve. The bank loan has covenants attached to it in relation to interest covering and gearing. Extension वगैरह की तरफ जा रहे हैं, कैश पे बर्डन पड़ेगा. ठीक है, तो ये भी आपका बिजनेस रिस्क में आ जाता है. पर्पस वाज एक्विजिशन टू एक्सपेंड द ग्रुप ऑपरेशन इनटू न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट. नई मार्केट में जा रहे हैं. दिस इज द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मेड बाय द हैमर ग्रुप. लेडर कंपनी ओन 50 हार्डवेयर स्टोर्स इन फॉरलैंड. द 35% NCI in Ladder Company is owned by the government of Ireland due to a regulatory requirement that at least a portion of the company share capital is government owned. The currency in Ireland is the same as the country in which the group is based. भाई नई लोकेशन में जा रहे हैं, नई ज्योग्राफिकल लोकेशन में जा रहे हैं, ओवरसीज में जा रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, तो ये भी एक हमारा बिजनेस रिस्क हो गया. तो सो फार हमें अभी तक 3 से 4 मिल गए हैं. एक्विजिशन ऑफ लैडर कंपनी, रेनोवेशन, ऊपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वो हैमर ग्रुप का. 4 हमें मिल गए हैं और हमें टोटल 5 चाहिए, क्योंकि 10 मार्क्स के बिजनेस रिस्क हैं. हर उसके जो है हमें 2 बिजनेस रिस्क, 2 मार्क्स का एक बिजनेस रिस्क है, तो हमें 5 चाहिए. टोटल 4 हमें मिल गए हैं. लेकिन योर फर्म वॉज अपॉइंटेड एज auditor of Ladder Company in October 2004, and several number of the audit team have traveled to Farland to become familiar with the company, its key management personnel, and its regulatory environment. Farland does not mandate the use of IFRS, and Ladder Company individual financial statements are prepared using Farland National Accounting Standards. Ranch Company is a financial service company of the group operating the Hammer Bank. Its customers are mostly the trade customers who obtain credit and loans to finance long-term building project. In the last year, the financial services regulator has been investigating many banks for charging excessive fees to customers in relation to loans, meaning that customers can claim back the excessive fees they have been charged. Ranch Company has received legal claims from more than 25,000 customers in respect of this, and the group recognizes the provision of 22 million in its statement of financial position. इसके अंदर हमें ऑडिट रिस्क भी मिल रहा है, यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट भी मिल रहा है, और लीगल क्लेम्स की वजह से लीगल रिस्क आ रहा है, तो बिजनेस रिस्क भी हमें मिल गया. 5 हमें मिल गए. लेकिन हम मजीद जरा आगे देखते हैं कि क्या हमें और मिल रहे हैं. बैंक लोन है, ऑब्वियसली ये भी एक वो आ गया. लीगल क्लेम्स आ गया, तो हमें ज्यादा तो मिल ही गए हैं. ठीक है, चले जी. क्वेश्चन का एंड हो रहा है यहाँ पे. सो अभी हमने क्या करना कि हमने देखा, क्वेश्चन देखा है, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक रिक्वायरमेंट के लिहाज से देखा है, विच इज बिजनेस रिस्क. पहले हम उस पर फोकस करते हैं और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो सिनेरियो हमने पूरा देख लिया था. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी ड्राफ्टिंग पे काम करते हैं, जिसमें आप लोग स्ट्रगल करते हो. तो हैमर, और सबसे सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, ड्राफ्टिंग में ज़ाहिर है जो ये इसकी फॉर्मेटिंग है, ब्रीफिंग नोट्स वगैरह की, भाई इसके नंबर्स हैं, प्रोफेशनल मार्क्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल है ये हमारा, ये आना चाहिए. सिंपल सिंपल भाई ब्रीफिंग नोट्स की हेडिंग देंगे पहले. ठीक है,
उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, टू Paula Sanders, group engagement partner, from audit manager। यानी कि सीधा सीधा जो हमारा सॉफ्टवेयर, हमने क्या करा, टू की जगह टू, टू और फ्रॉम को स्विच कर दिया, टू पे ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को कर दिया, फ्रॉम पे ऑडिट मैनेजर कर दिया। सब्जेक्ट हमारा आ रहा है क्या भाई, ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ हैमर ग्रुप। डेट 1 जुलाई 2005। ठीक है, आगे ये हो गया बेहतरीन। अब हमने इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा ईमेल पे आ जाओ। ये रही ईमेल। ठीक है, हम लोगों ने लिखना है, दिस ब्रीफिंग नोट्स इंक्लूड। पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी भाई, evaluate the business risk faced by the company। तो इंक्लूड evaluation of business risk, कॉमा, आगे बढ़ो। अगली रिक्वायरमेंट क्या है, evaluate and prioritize the risk of material misstatement to be considered in planning the audit of the group। तो भाई, कॉमा, evaluation and prioritization of risk of material misstatement। Full stop। Further, it includes। अब अगली रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है भाई, डिजाइन the principal audit procedures to be performed in respect of the expenditure relating to the store enhancement program। तो भाई, further in includes principal audit procedures in relation to store enhancement program, and finally it includes क्या भाई, discuss any ethical issues arising and recommend any actions which need to be taken। It includes discussion on
ethical issues. अच्छा, एक दफा और जरा देखें इमेज। issues, ethical issues which need to be considered, and recommended actions to resolve them। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप देख लो, एक लिहाज से हो क्या रहा है कि मैंने कॉपी पेस्ट करी है रिक्वायरमेंट्स। पहली रिक्वायरमेंट, अब हमारी पहली, ये हम लोगों ने कह लें 2 मार्क्स ले लिए। अब बिजनेस रिस्क आ गया, शुरू करते हैं बिजनेस रिस्क। पहली हेडिंग, सबसे पहला रिस्क हमने क्या आइडेंटिफाई करा था? रिलायंस ऑन हैमर ब्रांड। अब इस पे हम लोग क्या बात करेंगे जी, कि द ग्रुप सक्सेस इज बेस्ड ऑन हैमर ब्रांड एनी डैमेज हैमर ब्रांड could have implications for group maintaining its goodwill अब इस पे मजीद थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई इसको जस्टिफिकेशन भी ज़ाहिर है इसके ऊपर देनी है, और वो एग्जाम्पल हमने सिनेरियो से ही उठानी है। तो याद है क्या हुआ था अभी, हमने जब सिनेरियो पूरा देख रहे थे तो उसमें ग्रुप के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी हुई है कि वो एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे हैं, और ज़ाहिर है इससे रेपुटेशन खराब हो सकती है एज अ होल। ठीक है, रेपुटेशन खराब होगी तो गुडविल खराब होगी, और तो जाहिर है फिर कैश फ्लोज भी से ड्रेन होंगे, तो इसको सपोर्ट कर देते हैं। द इन्वेस्टिगेशन into the excessive fees charged by the hammer bank would affect the reputation of the brand as a whole। In a result, customer
can switch to other brands which will damage market share. हो गया भाई, 2 मार्क्स हमारे ये हो गए। आगे चलते हैं। अगला हमने वो याद है, प्राइस वॉर हो रही थी, तो भाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, तो अब इसके ऊपर बात करते हैं। द हार्डवेयर स्टोर is very competitive as it is mentioned. The price war between the competitor and mallet company which is indicated by the sale promotion offered by the group. अच्छा, तो अब क्या एंड इस पे बोलेंगे भाई, देयर इज अ रिस्क of losing customers if strategy is not successful. More aggressive pricing strategies will put pressure on the profit margin and cash flows. अच्छा है भाई, मजीद बात करते हैं कि इसके ऊपर इसके ऊपर कौन सी एक्सटेंशन एंड रेनोवेशन प्रोग्राम। एक्सटेंशन एंड रेनोवेशन प्रोग्राम। अभी तक हमने इस रिक्वायरमेंट से 4 मार्क्स ले लिए आउट ऑफ 10। जबरदस्त सीन है। तो अब इसमें क्या बोलेंगे,
This is a large investment for the group with approximately $144 million being spent on the program. ठीक है, अब ये किस तरह हो रहे हैं भाई 144 million? तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो भाई देख लो, 25 स्टोर्स हैं और हर स्टोर पे कितना लग रहा है? 5.75 million ईच लग रहा है। ठीक है, तो अब रिस्क क्या आ रहा है इससे ये बता देते हैं। देर इज अ रिस्क दैट देर इज नॉट एन adequate return on investment if the destination store strategy is not successful. अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखो, एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक ट्रिक और बताऊं जो मैंने यहाँ पे करा, कि देखो मैंने टोटल उसको ये बताया कि 144 million लग रहे हैं। ठीक है, और 20 उसको मजीद ब्रेक डाउन दे दिया, एनालिसिस दे दिया। ये इवैल्यूएट, लोग कहते हैं कि जी बिजनेस रिस्क में कैलकुलेशन का काम नहीं होता है, या बिजनेस रिस्क में जो है वो इवैल्यूएशन एनालिसिस का काम नहीं होता। तो ये मैंने क्या किया, मैंने देखो यही तो किया, मैंने बता दिया कि भाई हर स्टोर पे देख लो 5.75 million लग रहा है, तुम्हारा 25 स्टोर है, टोटल 144 million लग रहा है। एक हैवी ड्रेन है, और ये भी हो सकता है कि भाई ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टोर्स पे आपको इतना ज्यादा ना मिले, ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल ना हो सके। ठीक है, इस पे छोटी सी एक बात और आ जाती है। एडिशनली क्या है भाई, एडिशनली 5 स्टोर्स being closed at one time, there will be significant loss of revenue एंड कैश फ्लो। ये भी एक रिस्क आपने बता दिया कि इससे हो सकता है। और देयर में भी द डेंजर, एक आइडिया ये भी है कि भाई ये भी इसके अंदर आप बात पॉइंट आ सकता है, देयर में बी द डेंजर दैट customers having used
Alternative hardware stores, while the hammer stores are shut. ठीक है, तो भाई अभी तक हमने 6 मार्क्स अवेल कर लिए आराम से। ठीक है। अच्छा, दो पैराग्राफ भी काफी थे, ये जो मैंने आखिर में ये वाला पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैंने आपको पैराग्राफ दिया है, ये एक आइडिया दिया है, मजीद मैंने ऐड करा है कि भाई हम ये भी कर सकते थे। अदरवाइज मैक्सिमम जो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स हैं इस रिस्क के हवाले से, एक्सटेंशन एंड रेनोवेशन प्रोग्राम के हिसाब से, 2 मार्क्स के हिसाब से इनफ थे। ठीक है भाई, पढ़ा रहा हूँ तो ज़ाहिर है मैक्सिमम की तरफ जा रहा हूँ, ये एक नियत है। तो आगे हमारा, हमने 3 कर दिया भाई, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कर दिया, रिलायंस ऑन हैमर ब्रांड कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, बैंक लोन्स एक हमने पकड़ा था। ठीक है, मुश्किल मुश्किल रिस्क पकड़ रहे हैं भाई, इसलिए, क्योंकि आसान तो कोई भी कर लेता ना, तो मुश्किल चीज करो। अ सिग्निफिकेंट बैंक लोन representing 6.4% of the group total assets has been taken out to partly fund ladder company. This would have contributed significantly increase in the gearing ratio। ठीक है भाई, सिग्निफिकेंट एक बैंक लोन लिया, बड़ा तगड़ा चौड़ा बैंक लोन लिया है, जिसके अंदर 6% ऑफ टोटल एसेट्स हैं, पार्टली फंड हो रही, जैसे लैडर कंपनी की एक्विजिशन फंडिंग हो रही है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, आपकी गियरिंग रेशियो बढ़ रही है। तो अब इसको मजीद आगे बात करते हैं कि भाई ये क्यों मजीद रिस्क है, इसको भी बताना है। दिस वुड हैव contributed to the significant increase in the gearing ratio। ठीक है, हाई gearing possess a financial risk to the group, especially
due to the variable interest rate attached to the loan. I- If the interest rate rise, the group may struggle to meet interest payments. ठीक है, इसके अंदर अब कुछ रिस्क होते हैं आपके, जिसको आपको दायरन को एक्सप्लेन करने में थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, थोड़ा टाइम उसमें लग रहा होता है, और ये उनमें से एक है क्योंकि टेक्निकल भी है, तो इसको आपको वेल एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। इंटरेस्ट पेमेंट्स, दिस इज अ रियल कंसर्न especially as interest cover shows a sharp decline during the year and gearing is high at 68%. Finally, क्या बात करेंगे? The bank could recall the loan if the covenants are reached and group is unlikely to be able to repay the loan in its entirely if recall। चलो भाई, क्या बात हुई? इसमें ओवरऑल के भाई सिग्निफिकेंट बैंक लोन है, जिसके अंदर 6.4% आपके टोटल एसेट्स आ रहे हैं ग्रुप के। ठीक है, अच्छा जी, इससे आपकी गियरिंग बहुत बढ़ रही है। हाई गियरिंग का मतलब है, हाई गियरिंग का मतलब है कि फाइनेंशियल रिस्क आ रहा है ग्रुप को, फाइनेंशियल रिस्क आ रहा है, स्पेशली वेरिएबल इंटरेस्ट रेट उससे जो अटैच है। इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ रहा है, ग्रुप आपका स्ट्रगल कर रहा है, और रियल कंसर्न है कि इंटरेस्ट कवर जो है उससे में इंटरेस्ट कवर रेट में डिक्लाइन आ रहा है। गियरिंग आपकी 68% तक जा रही है, और बैंक जो है अगर आप से वो लोन रिकॉल भी कर सकता है। ठीक है, फाइनली हमें आखिरी देना है बिजनेस रिस्क, और वो कौन सा है? लीगल क्लेम्स। ठीक है, तो लीगल क्लेम्स के ऊपर बात करें तो भाई, फाइनेंशियल इंडस्ट्री
is highly regulated industry. And represents uh, diversification from the group other retail activities. It means group is less experienced in this sector and therefore poor strategic and operational decisions made relation to it. अच्छा जी, आगे the legal claims against ranch company could have significant implications the claims themselves put pressure on cash flow, the cost of claims will affect the profits. चलें 2 मार्क्स के लिए बहुत है। अब देखें जी, एक हेडिंग मेरी लीगल क्लेम्स, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और इसमें हम लोग ज़ाहिर है ये लोग नए हैं तो इनकी डिसीजन मेकिंग इसमें खराब हो सकती है। फिर क्लेम्स वगैरह बहुत ज्यादा आ गए, प्रॉफिट अफेक्ट होंगे। कितने मार्क्स हो गए? कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे? हमारे हो गए 2 मार्क्स। 2 मार्क्स। फिर बैंक लोन के ऊपर हमने बात करी थी यहाँ पे, ठीक है, कि बैंक लोन्स लिए हैं, लेडर कंपनी वगैरह सक्सेसफुल नहीं होती, इससे गेयरिंग बढ़ेगी, इंटरेस्ट कवर ड्रेन हो रहा है, अफेक्ट होगा, बैंक वापस मांग सकता है एंड ऑल दैट, ये बात करी थी। 2 मार्क्स इधर आ गए।
यहाँ पे ये देखो, इवेल्युएशन भी हमने करी, एनालिसिस भी करा, इवेल्युएशन एंड एनालिसिस स्केल आ गया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर भी आपको मिल गया। ठीक है, 2 मार्क्स ये होगा। बेहतरीन। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, 2 मार्क्स ये होगा। और रिलायंस ऑन हैमर ब्रांड, 2 मार्क्स ये हो गए। ओवरऑल 10 मार्क्स इस तरह हमारे इसमें कवर हो रहे हैं। तो आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे, नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।